ये सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Well, this is now, I mean, the same program. If you look at this, ठीक है ना? That is Celsius Fahrenheit program, ठीक है? But in this case, अगर आप इस program को देखोगे, we have done it using loop that is in this case for, ये for. पिछला program हमने किया था using while loop. Now this is for loop, ठीक है ना? Basically these are loops that you have in your C programming language. Loops क्या होते हैं? मैंने पहले ही बोला है. Loops simply means it executes a set of statements until the condition is true. जब तक condition true है, the moment condition becomes false, those statements won't get executed. ठीक है ना? तो हमने पिछले केस में देखा था that we did this program using while loop. ठीक है? So in this case we are doing the same program but using for. And remember this for is a keyword. ठीक है ना? I've already told you what keywords are. It's a keyword. ठीक है? It's a keyword. Keyword have special meaning for the compiler. That means this for it has to be small case. It cannot be capital letters because C is case sensitive. ठीक है ना? And you cannot use this for a variable name. ठीक है ना? I cannot do something like int for. ये गलत है अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा. If I do, let's suppose I declare an integer variable int, फिर मैं लिखता हूँ let's suppose for f-o, and by for I mean small case. अगर capital दोगे then it's perfectly fine. Then no issues. ठीक है? This is wrong. ये गलत है. ठीक है ना? It will throw, the compiler will throw an error telling you that you cannot give this name. ये नाम आप नहीं दे सकते because this is reserved for this. It's a keyword. ठीक है ना? This is special. ठीक है? So if you look at this program, what this program is, in this program we are doing the same thing but using for loop. Now look at this for loop. इसको देखो आप लोग. How do we write for loop? ये वाली line that I have encircled. It is for, that is a keyword, then there is bracket. ठीक है ना? This is the closing. ठीक है? यहाँ पे semicolons है, ये देखो. ये semicolon and there is one more semicolon here. ठीक है ना? In between there are this, एक तो ये है, ठीक है, and there is this and there is this. You know, there are two semicolons. ठीक है ना? So basically this for loop, as you can see, it has got two semicolons in these brackets that you have यहाँ और यहाँ से, and in that you have got this part 1, 2 and 3. Basically these can be expressions. ये सारे हो सकते हैं expressions. ठीक है? Expressions. ठीक है ना? Expressions. Is it? If I write the general format, it is like this: for bracket open expression. Expression can be anything that will be made up of operators, maybe plus, minus, multiply, divide. उसको हम expression कहते हैं. ठीक है ना? आपको पता है. Expression. Then there is a semicolon. Then there is one more expression. exp मैं अब लिख रहा हूँ. ठीक है ना? Then there is semicolon. ठीक है? Then there can be an expression. This is a general form, generic form, what I am writing. ठीक है ना? Expression. ठीक है? Then you can have these curly braces. ठीक है? Like this, and this is what we call as the body. This will have statements. ठीक है ना? So this is the body of your for loop. If this is the body, it can contain any number of statements. In this case, you have only got this one statement. If you look inside this for, ठीक है ना? In this program, only one. That is this printf. ठीक है ना? It can have any number. Now, how does for work? Actually, this is an expression. This is an expression. This is an expression. ठीक है ना? Default. ठीक है? So simply this middle one, usually this is the condition part. ठीक है ना? I will come to the condition. What for does is it will check this expression. It is a condition. If it is true, and by true I mean if it is true, then a non-zero value is returned. The control will go inside and these statements will get executed. ठीक है ना? ठीक है? After these statements get executed, control यहाँ पे जाएगा इस expression पे. ठीक है ना? उस expression के बाद फिर जाएगा control यहाँ पे. Again this expression will be evaluated. This is a condition. अगर ये true होगी
कंट्रोल और जाएगा अंदर, all these statements will get executed, उसके बाद और जाएगा इस जगह पे, इस expression पे, and then again it will go here. It will keep on moving like this until this condition becomes false. The moment condition becomes false, control will come here. ठीक है? Now what is this expression? This expression is simply initialization. ठीक है ना? कोई value आप दे रहे हो, initialization, in initialization. ठीक है? Whatever value you are giving. ठीक है? So my point is simply these are three expressions. They can be expression. ठीक है ना? आप इन तीनों को omit, आगे चल के हम देखेंगे in a for loop you can omit all the three expressions. You may omit one, you may omit two. It depends upon what you need. ठीक है ना? आप देखोगे आगे हम करेंगे वो प्लेस for, ये एक्सप्रेशन में कुछ नहीं रखेंगे, ये इन दो जगह पे कुछ होगा, मे बी इस जगह कुछ नहीं होगा, इन दो पे कुछ होगा, मे बी तीनों जगह कुछ ना हो. ठीक है ना? वो हम आगे देख लेंगे, वो आई विल टेल यू. नाउ लुक एट दिस व्हाट आई वाज सेइंग. ठीक है? सो आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर. ठीक है ना? एक्सप्रेशन इज अ जनरल फॉर्म. ठीक है? आफ्टर सम, अच्छा उसके बाद ठीक है ना? सो व्हाट अब एक्चुअली इट्स नॉट अलाउइंग टू, इसको एडिट नहीं करने दे रहा. लेट मी डू इट लाइक दिस. एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट. जस्ट अ मोमेंट. ठीक है ना? मैं एक बार ही शेयर करूंगा. आप लोग वहीं पे हो ना? यू आर देयर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक. एक अच्छा, आई एम शेयरिंग इट अगेन. ठीक है ना? So we were discussing this, the same program, but in this case we have done it using for. अब आप देखो इस for statement को, ये वाली जो है आपकी. ठीक है ना? See, this is bracket open part of syntax. This is the initialization step. ये वाला जो ये है पहला वाला, ये वाला. ठीक है ना? But it can be an expression. Remember, ये कुछ भी हो सकता है, an expression. In this case, you know this is an this assignment operation. Whatever is on right hand side, that will get assigned to this. ठीक है ना? So in this case, the value of Fahrenheit lower is what? 0. ठीक है ना? I will come to these things. मैं ये बता दूंगा ये part. ठीक है? So lower actually 0 है, वो Fahrenheit को हम वो value दे रहे हैं 0. ठीक है? After that, this is the condition. This is the second expression. ठीक है ना? This is the condition part. ठीक है ना? Then this is actually the increment. If you look at this, ये increment आपका हो रहा है. ठीक है? In this case, it is increment that is taking place. ठीक है ना? बिल्कुल वही पुराना प्रोग्राम है. ठीक है? बट दिस इज हाउ यू राइट अ फॉर लूप. ठीक है? सो व्हाट इज हैपनिंग इज इनिशियली लोअर का वैल्यू है 0 यहाँ पे. अब मैं आपको बोलूंगा व्हाट आई हैव डन इन दिस केस. एक्चुअली द वैल्यू ऑफ लोअर इज 0. इट इज बीइंग असाइन्ड टू फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट ने वैल्यू लिया 0. ठीक है ना? सो यू कैन ड्रॉ दैट बॉक्स, कुछ एड्रेस दे दो एंड राइट फ़ारेनहाइट, द सेम थिंग जो मैंने कल दिखाया था. ठीक है ना? एंड एट दिस पॉइंट इट टेक्स द वैल्यू 0. तो इसमें डाल दो 0. इससे पहले इसका वैल्यू गार्बेज वैल्यू था, रिमेंबर. ठीक है ना? At this point it's taking the value 0 because lower is 0. I will tell you what this is. ठीक है ना? ये छोड़ दो आप अभी. At this point it is taking value 0. इससे पहले इसका वैल्यू था garbage value. That is some weird value. अगर आप वो प्रिंट कराओगे स्क्रीन पे, that will be some weird value. 6 4 7 8 कुछ ऐसा आएगा. Useless value. उसको हम garbage value कहते हैं C jargon में. ठीक है? This is the condition part. ये दूसरा expression जो है. ठीक है ना? So what is this? If Fahrenheit is less than or equal to upper, what is the value of upper? It is 300. ये ऊपर देखो. ठीक है ना? The condition is true, so control will go inside. What is inside the for? What is the body of this for? Only this statement. खाली ये ही एक statement. बस. ठीक है ना? क्योंकि एक ही statement है. So this condition is true. This printf will get executed. So initially it is what? %3d. That you know what is %3d. It is a field width of 3. ठीक है ना? ये हमने कल डिस्कस किया. And remember, I had told you this will get mapped with the first one, that is this. ठीक है ना? And this, sorry, this will get mapped with the first one, that is this. ठीक है ना? And the second one is this %6.1. This will get mapped with or matched with this. ठीक है ना? Remember, this is a very important point. What the compiler does is it will match the first with the first, that is FHR. फिर second को
सेकंड के साथ, अगर इसके बाद और भी कुछ होता है ऐसी मैचिंग होती है। नंबर एंड टाइप शुड मैच, रिमेंबर, बिकॉज फ़ारेनहाइट किस टाइप का है, इट इज एन इंट, इट्स एन इंटीजर वेरिएबल, इसीलिए यहाँ पे परसेंट, इसीलिए यहाँ पे डी आएगा, ठीक है ना, इट शुड मैच बिकॉज फ़ारेनहाइट इज व्हाट, इट इज एन इंटीजर वेरिएबल, दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट डी। अगर आपने गलती से एफ लिख दिया यू विल गेट रॉन्ग आंसर्स, ठीक है ना। सिमिलरली जो ये वैल्यू कैलकुलेट होके हमें आएगी, ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू, इट विल बी अ फ्लोट वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एफ, ठीक है ना, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है, ठीक है। सो दिस कंडीशन इज ट्रू, कंट्रोल विल फॉल इनसाइड, व्हाट विल हैपन, तो ये क्या कर देगा, देखो पहले परसेंट 3d, यू नो दैट्स अ विड्थ ऑफ 3, ठीक है ना, 1 2 3, एंड इट इज पॉजिटिव, दैट मींस राइट जस्टिफाइड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट, इट इज 0, that will get printed. After that it's percent 6.1 f, ठीक है ना, 6.1, 0.1 means only one decimal after the sorry, only one digit after the decimal point, otherwise you know by default it's how many digits, it's 6 digits, and what is percent 6, it's a field width of 6 digits, तो आप ऐसे डाल दोगे 1 2 3 4 5 6, it's positive, ठीक है ना, so इसका वैल्यू हमें क्या आ रहा था जीरो के लिए, it was how much, 17.8, ठीक है ना, so it will be like this, 17 then 0.8, ठीक है ना, then there is this backslash n, it will take cursor to the next line, that is it will come here, ठीक है ना, cursor will come here. अब इसके बाद क्या होगा जब ये प्रिंट होगी, कंट्रोल विल गो टू नाउ टू दिस पॉइंट, टू दिस एक्सप्रेशन, फ़ारेनहाइट अब बन जाएगा 0 से 0 प्लस स्टेप, व्हाट इज स्टेप, इट इज 20, so Fahrenheit will become 20. After that again control will come here, it will now check is Fahrenheit 20 less than equal to upper, condition is true, it is less, control और जाएगा अंदर और ये प्रिंट होगा, इस बार Fahrenheit की वैल्यू क्या आएगी 20, that is 2 and 0, and corresponding value अब आप खुद ही देखोगे वो क्या क्या, okay? So this statement will get executed how many times, it will get executed 16 times, ठीक है, is it clear? And look one more thing, this for has only got this one statement, that is this printf percent d this, ठीक है ना, इसीलिए इसने curly braces नहीं डाले इसके भी अंदर, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, if there is only one statement, this is important point, ये याद रखना हमेशा, it is not necessary to put these curly braces, what I mean by that is यहाँ पे देखो, let's suppose I have got this for something here, यही expression 3 है, ठीक है ना, कुछ लिखा है, ठीक है, आप लोग सुन रहे हो कि नहीं, you are there, Yes, sir. दिस इज द बॉडी, ठीक है ना, ऑफ फॉर, ठीक है, ओ सॉरी सर, पहले मुझे इसको रब करना, अच्छा चलो ऐसे रख देते हैं, मान लो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कुछ, फिर ये दूसरी स्टेटमेंट है, टू स्टेटमेंट्स आर देयर, लेट्स सपोज, ठीक है ना, सो यहाँ पे कुछ लिखा है, दिस इज इनिशियलाइजेशन, दिस इज द कंडीशन पार्ट, एंड दिस इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, इंक्रीमेंट प्लस व्हाटएवर, सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनसाइड दिस फॉर, टू स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, दिस इज द बॉडी, ये है ना बॉडी इसकी, so if condition is true, control will fall inside, these two will get executed, उसके बाद कहाँ control जाएगा, यहाँ पे increment or decrement will take place, and after that again control will come where, to this part, again condition will be tested, if it is true again control, this will continue till condition becomes false, the moment condition becomes false control यहाँ आएगा, ठीक है ना। now my point is, देखो इस में मैंने curly braces डाले तो आपको समझ आएगा कि these two statements are inside for, fine, what if I rub these two curly braces, ये brace, इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू, आई सिंपली रोट फॉर, फिर कुछ था, फिर मैंने सीधे ये दो स्टेटमेंट्स लिखी, अब आप मुझे बताओ कंपाइलर क्या दोनों स्टेटमेंट्स को विद इन फॉर लेगा, व्हाट विल हैपन इन दिस केस, आई हैव नॉट पुट दिस कर्ली ब्रेसेस, हाँ बोलो, एनीवन कैन आंसर, एनीवन कैन आंसर, see I have removed these curly braces, my question to you is, are these both these two statements included in the body of for, क्या दोनों इसकी बॉडी में आते हैं, दैट मींस इफ कंडीशन इज ट्रू कंट्रोल गोज इनसाइड, क्या ये दोनों एग्जीक्यूट होंगी, कौन कौन सी स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट से फॉर के अंदर, हाँ बोलो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, किसी का कोई जवाब, हम
हाँ बोलो। अरे बोलो, कुछ जवाब दे दो। हेलो, यू आर लिसनिंग कि कट गया? यस सर। तो वही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट विल हैपन इन दिस केस? वही एग्जीक्यूट होगा सर, जो हाँ ट्रू होगी ना, मतलब सर वही वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो नहीं होगी वो नहीं होगी सर। नहीं, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पे लिखा है ये है ना, ये आप देखो ये, ठीक है। फॉर है कुछ करली ब्रेसेस डाले, अब देयर आर टू स्टेटमेंट्स, लेट्स सपोज प्रिंट एफ दो बार लिखा है, प्रिंट एफ एबीसी और प्रिंट एफ डीईएफ, लेट्स सपोज आई नो दीज टू स्टेटमेंट्स आर इनसाइड फॉर, क्योंकि करली ब्रेसेस मैंने ऐसे डाले, दिस इज द बॉडी। मतलब अगर एक कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल इनसाइड जाएगा, ये दोनों एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद कंट्रोल इस जगह पे आएगा, ठीक है ना, इस जगह पे, वट एवर इज हियर, उसके बाद वापस जाएगा इस जगह पे, ठीक है ना। अगेन इफ दिस इज ट्रू, अगेन कंट्रोल, दिस इज फाइन, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स सपोज आई रिमूव दिस करली ब्रेस, ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। इफ आई रिमूव, what you need to remember is only this statement is within for, ठीक है ना। खाली जो इस for के बाद आ रही है, that is this in this case, खाली ये for के अंदर है, it is understood, इसको हम कहते हैं it is implicit, ठीक है ना। implicit होता है automatic, लेकिन हम इसको यूज करते हैं implicit, IML implicit, ठीक है। is it clear? implicit होता है जो automatically understood है, ठीक है ना, which is, I'm repeating, if you don't put these curly braces, खाली जो next statement होगी वही सिर्फ for के अंदर, that's it, ठीक है ना। whatever is preceding after वो खाली वही है, ठीक है ना। otherwise you will get confused कौन सी statement है, only the next statement, like in this case अगर आप ये प्रोग्राम देखोगे, इसने for के बाद curly braces डाली नहीं, because there is only one statement, let's suppose इसके बाद एक और भी होती है यहाँ पे कुछ, मान लो यहाँ पे लिखा था प्रिंट एफ, मान लो इसके बाद लिखा था प्रिंट एफ, मान लो लिखा था डबल कोट्स में, मान लो ए, लेट्स सपोज स्मॉल ए, ऐसे लिखा था, ठीक है, ठीक है ना। तो फॉर दिस देन दिस, उसके बाद था ये स्मॉल ए, फिर ये ना ये बंद, ये यहाँ पे बंद, ठीक है। दैट इज मेन बॉडी इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। नाउ माय क्वेश्चन वाज व्हिच स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट्स आर इनसाइड फॉर? नो, ठीक है ना, both the statements are not inside for, only this statement is inside for। कौन सी स्टेटमेंट जो इस for के बाद आ रही है, that is this one, this is not inside for, this printf है। हाँ, ये तभी for के अंदर होगी अगर आप ऐसे करली ब्रेस डाल दोगे, ये स्टार्टिंग यहाँ प्रिंट ही नहीं होगी, फिर हमें उसका आउटपुट ही नहीं आएगा, मतलब प्रिंट एफ डबल जो आपने, print a will only get executed once when the condition of for loop becomes false, उसके बाद कंट्रोल जाएगा printf a statement, it will only get printed once and not 16 times because it's outside for, is it clear? यस सर। ये काम ये सबको क्लियर है कि नहीं? सर पॉइंट ये है कि अगर हम इस इम्प्लिसिट स्टेटमेंट में वो कर्ली ब्रेसेस डालेंगे फिर एरर दिखाएगा। हाँ, क्या मतलब, रिपीट करो क्वेश्चन। जो बोला ना आपने, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें वो कर्ली ब्रेसेस जरूरी नहीं है, लेकिन अगर करली हम ब्रेसेस डालेंगे तो जरूरी, ये एरर दिखाएगा। अगर आप डालोगे करली ब्रेसेस यस सर। ना, एरर क्यों दिखाएगा, जरूरत नहीं है। अगर आपने करली ब्रेसेस नहीं दिए हैं, जो फॉर के बाद पहली स्टेटमेंट होगी, एंड भाई स्टेटमेंट याद रखना, स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट इज व्हिच गेट्स टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। जो फॉर के बाद पहली स्टेटमेंट होगी बस वही होगी इंक्लूडेड विद इन फॉर, ऑटोमेटिकली कंपाइलर सिर्फ उस एक ही स्टेटमेंट को लेगा, ठीक है। अगर आप उस एक स्टेटमेंट के आगे पीछे करली ब्रेसेस डालोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। एक्चुअली जो ये है ना, ये करली ब्रेसेस व्हाट वी कॉल, ये है एक्चुअली, इसका नाम है कंपाउंड स्टेटमेंट, यू कैन राइट इट डाउन, कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड स्टेटमेंट। इसका रीजन क्या यूज करने का, वी ग्रुप 1, 2 और मोर स्टेटमेंट्स इनटू दीज, ठीक है। एक्चुअली इसीलिए हम करली ब्रेसेस डालते हैं, ठीक है ना। वरना कंपाइलर फॉर के बाद लेट्स सपोज एक ही स्टेटमेंट लेगा अगर आपने करली, अगर आप लेकिन कंपाइलर को बोलना चाहते हो नहीं, यू हैव टू इंक्लूड 5 स्टेटमेंट्स इनसाइड फॉर, आप उन 5 स्टेटमेंट्स के आगे करली ब्रेसेस डालते हो,
यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्लियर है ये पॉइंट? अगर आप उस Yes, एक sir. स्टेटमेंट के अराउंड कर्ली ब्रेसेस डालोगे, इट विल मेक नो डिफरेंस, प्रोग्राम विल वर्क फाइन, इसमें एरर क्यों आएगा? लेकिन पॉइंट इज, अगर आपने फॉर लिखा है, उसके बाद दो स्टेटमेंट्स है, लेट्स सपोज ये printf और मैंने लिखा printf a, खाली ये पहली वाली स्टेटमेंट इनसाइड फॉर, बस। अगर आपने दोनों इंक्लूड करनी है, फिर आपने कर्ली ब्रेसेस डालने, जैसे आपने अभी तक किया है व्हाइल में, ठीक है ना? एक्चुअली इसको हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड, COMPOUND। तो हाँ तो पूछो। अगर हमें लाइक आपने दिखाया ना फॉर के लिए, अब हमें वहां अपने वाइल का भी निकालनी है एक स्टेटमेंट, वाइल वाली, तो फिर हमें उसके लिए अलग से कर्ली ब्रेसेस करने हैं यूज की फॉर के साथ जो हमें लगा है वही वाला, फिर एंड करना है वाइल वाली स्टेटमेंट के बाद, कि नए से वाइल का स्टार्ट करना है कर्ली ब्रेसेस? मुझे समझ, वाइल तो अलग तरीका का लूप है, उसका अलग तरीका है लिखने, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया, ठीक है ना? दीज आर अगर लूप्स। हमें इसमें ना वो मतलब दूसरा मतलब फॉर के बाद हमें लिखना होगा वाइल का, मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट ना, हमें अच्छा, वाइल का भी लिखना है, फिर उसके कर्ली ब्रेसेस अलग से लिखने हैं? जो भी आप वाइल में चाहते हो स्टेटमेंट्स डालना, लूप के अंदर आप जो भी, अगर आपको लूप, देखो पॉइंट सिंपल है, अगर आपके लूप में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आ रही है ना, ओनली वन स्टेटमेंट, फिर कर्ली ब्रेसेस डालने की जरूरत नहीं है, अगर डालोगे भी इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स है, मानो 5 है, 7 है, 8 है, यू हैव टू पुट कर्ली ब्रेस अराउंड देम, दैट्स इट। अगर आप ये प्रोग्राम देखोगे ना, ये बुक, इसने प्रिंटफ स्टेटमेंट के अराउंड कर्ली ब्रेसेस क्यों नहीं डाले इस टाइम? बिकॉज इट्स ओनली वन स्टेटमेंट, जरूरत नहीं, अगर डालोगे भी इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हाँ, अगर एक से ज्यादा होंगी, फिर आपको कर्ली ब्रेसेस डालनी है, अगर आपको दोनों को रखना है, ठीक है? इज इट क्लियर? अगर ये printf a है, ये वाली स्टेटमेंट है ना printf a, this won't be included inside for loop, remember, only the first one will be inside for, मतलब ये खाली एक ही बार एग्जीक्यूट होगी, और कब होगी एग्जीक्यूट? when this condition becomes false, because when this condition becomes false, कंट्रोल आएगा for loop के बाहर, और for loop के बाहर कहाँ पे? इस वाली स्टेट। उसके बाद ये प्रिंट a होगा, उसके बाद आगे चल के प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है कि किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, पूछो पूछो, मैं वेट करूंगा। आप पूछो, सबको क्लियर है ये? अगर ये फॉर में किसी को अभी इशू है तो पूछ लो, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है? नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू यूज व्हाइल और फॉर, इन दोनों का काम द सेम है। कभी इंसान को फॉर आसान हो जाता है, अगर आप देखोगे कितना कॉम्पैक्ट है फॉर, इन अ सिंगल लाइन यू हैव रिटन एवरीथिंग, इनिशियलाइजेशन भी कर दी, यहाँ पे यहाँ पे कंडीशन भी डाल दी, एंड दिस इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कैन बी एनीथिंग, बीच में सेमीकोलंस दो है, ये याद रखना, ठीक है ना? एक्चुअली दीज ऑल थ्री आर एक्सप्रेशंस, दे कैन बी एनी एक्सप्रेशन, ठीक है ना? वो हम आगे देख लेंगे, एक्चुअली याद रखना, दे कैन बी एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस समथिंग व्हिच इन्वॉल्व्स ऑपरेटर्स, ठीक है ना? और हम आगे देखेंगे, हम कभी तीनों को एक्सक्लूड करेंगे, दो को रखेंगे, एक को छोड़ेंगे, एक को रखेंगे, वी कैन डू एनीथिंग। इसमें किसी को कोई डाउट? नाउ व्हाट आर दीज? इनको हम कहते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट्स, प्लीज राइट इट डाउन। इसको कहते हैं सिंबॉलिक, SYMBOLIC, सिंबॉलिक नेम्स भी कहते हैं या सिंबॉलिक कांस्टेंट्स भी कहते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट, ठीक है? अगर इंट्यूशन ही बताता है, these are the lines that are starting with what? Hash, और याद होगा this is handled by which software? Preprocessor, and they don't terminate with a semicolon, मैंने पहले ही बोला, ठीक है ना? This hash define is a directive, ठीक है ना? इसको डायरेक्टिव कहते हैं hash define को, like how hash include is a directive, ठीक है ना? Whatever, हाँ, किसी को क्वेश्चन है कोई? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, आ रही है। सो आई वाज डिस्कसिंग, दिस इज, इनको हम कहते हैं सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना? ये क्या होता है, इसका फॉर्मेट ये होता है, सिंबॉलिक नेम एंड दिस इज रिप्लेसमेंट, दिस इज द सिंबॉलिक नेम, ठीक है ना? एंड दिस इज इट्स रिप्लेसमेंट, ये वैल्यूज रिप्लेसमेंट होती है। मतलब क्या होता है? इट सिंपली टेल्स द प्रीप्रोसेसर वेयर एवर यू फाइंड लोअर, एंड बाय लोअर आई मीन कैपिटल LOWER, यहाँ पे आपने कैपिटल लिखा है, ध्यान रखना, सी इज केस सेंसिटिव। ये क्या इसको कहता है? वेयर एवर यू फाइंड कैपिटल LOWER, रिप्लेस इट विद जीरो। इसलिए जहां पे इसको मिला ना कैपिटल LOWER, इसने इसके बदले रिप्लेस क्या किया? जीरो। सो दिस स्टेटमेंट Fahrenheit is equal to lower is same as Fahrenheit equal to zero, कोई फर्क
Fahrenheit equal to 0. Is it clear? I am repeating, these are symbolic constant. ये नाम है और ये इसका replacement है. ये कुछ भी हो सकता है. This can even be an expression. ये है ना ये. This can even be an expression. ठीक है ना? Expression भी हो सकता है. इस टाइम 0 है. It can be even 5/9. अगर expression होगा, put it in brackets. अगर suppose 5/9 था ना, और 5/7 और 5 into, then put it in brackets. ठीक है? Then put it in brackets. It can even be characters. If it is characters, then put it in single quotes. Let's suppose A, B, C. अगर यार कुछ भी हो, then put it in single quotes like this. ठीक है? So I was talking about this. Similarly, hashed one. Wherever you find upper, and by upper I mean capital, replace it with 300. कहाँ पे upper है? यहाँ पे तो 300. Wherever you find step, replace it with 20. तो step को कर दिया replace किससे? 20. इनको हम कहते हैं symbolic constant. ठीक है ना? अब आप पूछोगे सर हम ये क्यों कर रहे हैं? Why we are writing it at the top? There is a reason for it. इसका एक रीजन आप ऐसे समझो, मिसाल के तौर पे it's a very good, I mean it's a simple advantage you can understand. मिसाल के तौर पे hash define preprocessor को क्या बोलता है? Wherever you find this lower, replace it with 0. अगर मैं ये नहीं लिखता, मैं lower के बदले सीधे यहाँ पे 0 लिखता, कोई फर्क पड़ती? कोई फर्क नहीं पड़ती. फिर आप बोलोगे सर आप क्यों लिख रहे हो? लेट्स सपोज आपके प्रोग्राम में lower is coming 50 times. मान लो ये lower है ना, LOWER, ये 50 बार आ रहा है. ठीक है ना? आपने इसका वैल्यू दे दिया 0. आपने ये सिंबॉलिक कांस्टेंट्स यूज नहीं किया. आपने 50 जहां पे है आपने 0 0 लिखा है. 0 0 एवरी. ठीक है? नाउ आई टेल यू नो, यू चेंज द वैल्यू ऑफ लोअर फ्रॉम 0 to 20. आपने कितनी बार चेंज करना है प्रोग्राम? बोलो. 50 times. 50 times एब्सोल्युटली. लेकिन इफ यू यूज दिस थिंग, आपको कहां पे चेंज करना है? सिर्फ ऊपर. So this is one of the advantages that you can think. Other than that, it also increase the readability. Reader को समझ में आता है, अच्छा lower value है 0. I am repeating, these are symbolic constants. These start with a hash. They are taken care by the software that we call as preprocessor. ठीक है ना? These are even called as your symbolic name. इसको symbolic name कहते हैं और इसको replacement text कहते हैं. That means it simply tells the preprocessor wherever you find lower, and by lower I mean capital LOWER in this case. ठीक है ना? Replace it with 0. ठीक है ना? It can even be an expression. If it's an expression, put it in brackets. It can even be characters. ठीक है ना? Then put it in single quotes like this. ठीक है? So these are the things. I hope this इसमें clear है. For loop clear है. For अगर किसी को कोई doubt है फिर मैं close करूँगा. For loop clear है सबको. For bracket open. This is the initialization. This is the condition part. ठीक है ना? And then this can be anything. This is the increment, decrement. Actually ये तीनों हो सकते हैं expressions. ठीक है ना? What will happen first? This will get executed. 0 will get assigned to Fahrenheit. Fine. After that, this condition will be tested. If it is true, and by true I mean non-zero value, control will go inside the body of for. What is there? Only one statement printf. This will get executed. ये execute होने के बाद control कहाँ जाएगा? It will come to this expression number 3. This will make Fahrenheit 20. उसके बाद कहाँ जाएगा? उसके बाद यहाँ पे आएगा. Again condition will test. Again it is true. Again control जाएगा अंदर और execute होगा. इसी तरह चलता जाएगा. When this becomes false, control will come here in this case, right here. ठीक है ना? उसके बाद कुछ नहीं है, ये आगे जाएगा, program will terminate, and you will get this out. This is how for works. All the for and while they are loops, but this is more compact. आप देख सकते हो एक ही लाइन में सब कुछ हो रहा है. ठीक है ना? पिछली बार हमने यही प्रोग्राम while के थ्रू किया था. ठीक है? And this was about your symbolic constants. ठीक है ना? ये इसमें किसी को डाउट है? So I will just take up some simple programs. ये क्लियर है सबको? Yes, sir. किसी को कोई डाउट, any query you may ask, otherwise I will close this program. किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, क्वेश्चन? चलो ठीक. रिमेंबर these for these are expressions. आगे हम देखेंगे और हम इनको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं. ठीक है ना? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पे एक बात, ये है ना ये एक्सप्रेशन वाला पार्ट, अगर मैं ये निकाल दूं, रखूं ही नहीं इसको यहाँ पे, देयर इज नथिंग, खाली ये फॉर फ़ारेनहाइट इक्वल टू लोअर सेमीकोलन, फिर कुछ नहीं है, फिर और सेमीकोलन, फिर है फ़ारेनहाइट इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस 20, फिर यही है. कैन समवन टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम if I omit this middle expression number 2, Fahrenheit less than equal to upper, मैं ये रखूं ही नहीं, मैं खाली रखूं for Fahrenheit equal to lower semicolon,
फिर ये वाला सेमीकोलन, फिर ऐसे ही सेमीकोलन डालना, इट्स मस्ट ये वाला 2 सेमीकोलन, दिस वन एंड दिस वन, फिर Fahrenheit equal to Fahrenheit plus step. Can someone tell me what will be the output of this program? कोई बता सकता है? So initially lower की वैल्यू क्या है 0, that will get assigned to Fahrenheit, then it will come here compile, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है ना, so by default condition will be taken as true, please remember it. यहाँ पे कुछ नहीं हमने दिया ना, default it will take it as true, condition is true, control जाएगा अंदर, ये प्रिंट कर देगा इसको, उसके बाद जाएगा अपनी जगह यहाँ पे, कर बना देगा Fahrenheit को 20, आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कंट्रोल जाएगा और अंदर, अगर कुछ नहीं है कंडीशन इज ट्रू, और करेगा, ठीक है ना, और फिर 40 ऐसे ही, फिर 300, फिर 300, so basically it will become what we call as an infinite loop. It's an infinite loop. If you run this program, it will never ever stop. It will continue 300 के बाद 320, 40, because there is nothing here, it will take it by default as true, ठीक है ना, और ये important है, हम आगे देखेंगे, it is needed for, I mean sometimes it's needed, ठीक है ना, sometimes you don't want to give any condition, you are simply telling just go inside. Is it clear? सब सुन रहे हो कि you are there everyone? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया ये? चलो I will close this, ठीक है ना, ये मैं बंद कर, अब मैं देखता हूँ what else I have. So this was some simple programs. अच्छा, मैंने आपको कल वो शेयर किया था, if you remember, those I had shared it in the group, ठीक है ना, those format specifiers, ठीक है, if you remember I had %d, अब आपको पता है it's for integer, %f for float, for character it's %c, I will come to that, character, ठीक है ना, char, keyword is char, it's %c, ठीक है ना, similarly for double it's %g, ठीक है, %g और %f में फर्क है, वो देख लेना, दैट इज ट्रेलिंग जीरोस, वो नहीं देगा, जस्ट रीड इट, आई हैव गिवन इट. सिमिलरली फॉर लॉन्ग इट इज परसेंट इट्स %ld, ठीक है ना, फॉर अनसाइंड इट्स %lu, ठीक है ना, फॉर शॉर्ट इट इज %s, वो मैंने कल शेयर किया, प्लीज गो थ्रू दैट, आई वोंट टेक इट अप, ठीक है ना, वो आप खुद देखोगे व्हाट आर द फॉर्मेट दिस स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, आप खुद देख लेना, ठीक है ना, कैर का मैं बता दूंगा बिकॉज इट्स अ बेसिक टाइप, ठीक है ना, कैर के लिए %c. अच्छा, लुक एट दिस प्रोग्राम दैट वी हैव. ये सबको ये प्रोग्राम दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. कैन यू टेल मी, ये क्वेश्चन आपके सामने, जरा बताओ इसका पहले बी पार्ट बताओ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ये वाला नीचे वाला. स्क्रीन पे बताओ एग्जैक्टली आउटपुट क्या आएगा इसका. हाँ बताओ जल्दी. फर्स्ट printf, it will print this Parkinson's, comma, law, LAW, फिर colon है. Then \n is what? Huh? It's an escape sequence. It will take cursor to the next line. ठीक है ना? So Parkinson's law print हुआ, cursor आएगा दूसरी लाइन पे, उसपे क्या आएगा? Work expands so as to, फिर ये स्पेस है. उसके बाद क्या है? बताओ इसका आउटपुट जल्दी. अरे ऐसे ही बताओ ना वर्बली. Fill the time. हाँ. उसके बाद there is this again \n. It will take cursor to the next line. Available for its completion. Then again there is. Completion. So what will be the output? It will be Parkinson's law, this colon, then next line पे आएगा work expands so as to, फिर next line पे available for its completion, and then this will take cursor to the. What are the directives in this program? Directive कौन सा है? Directive is this, ठीक है ना? Directive is which is for the preprocessor, ठीक है? Is it clear? Yes, sir. Has been included. ये तो आसान है. ये fill the time next line में नहीं आएगा ना? हाँ. Fill the time जो दूसरी लाइन है. नहीं वो Parkinson's law of work expands so as to fill the time, एक ही लाइन में आएगा.
printf does not supply new line automatically, एक ही लाइन में आएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जब तक आपने \n नहीं दिया ना, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ही नहीं आउटपुट। यू हैव टू राइट \n दिस एस्केप सीक्वेंस, ओनली देन कर्सर विल गो टू द नेक्स्ट लाइन। ये तो बिल्कुल वही आप सही बात अगर है। हम सर अगर हम वर्क एक्सपेंस टू एज टू \n करेंगे, मतलब एक ही लाइन में 2 बैकस्लैश आ सकते हैं? अरे 50 दे दो, क्यों नहीं आएंगे, 100 भी आएंगे, इसमें कोई 1000 दे दो, व्हाटएवर यू वांट, जितने आपके मर्जी है उतने \n लगाओ, ठीक है।